Guys, everyone is requested to turn on the cameras if they won't mind. Okay. So, ma'am will be starting in a while shortly. She is currently pursuing her postdoc from IICR Kolkata. Okay. So, you can raise your doubts and you can interact in between. Okay. Ma'am will be happy to answer your questions. Uh, Dr. Nisha, you can start. Yeah, okay. So, hello everyone. This is Dr. Nisha Gupta, and currently, as Sir told, I am a postdoctoral researcher in the Department of Biological Sciences, IISER Kolkata. So, I just now came from lab. So, we will start for what we have gathered here. So, should I start? Yes, ma'am. Sure, ma'am, you can Yes, start. ma'am. Okay. So, let me present my screen. So, quickly let me know my slides are visible or not. Yes, ma'am. Yeah, it's visible. Yes, ma'am. Okay, and my voice is also clear. Yes, ma'am. Yes, Absolutely. ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Okay, so let's start. So basically, I am working currently in DBS, and my current project, there are actually two projects. One is related to the environmental biotech, and the other one is related to the breast cancer. So we are currently dealing with two projects. One is the collaborative one with some clients from USA, and the other one is solely with the ICER professor. So these are my team, and he is my PI, Professor Tapas Kumar Sengupta. So currently I'm working under his supervision in both the topics which I mentioned earlier. So we will quickly start today's topic, that is how to craft a winning CV. As you all know that this is a very crucial part for your selection. Like you all have same kind of degree. If we talk about a MSc graduate, just a minute. You can interact with me at any time. If you want to ask me any question at any point, you can ask me and you can raise your query. So what I was saying, it is not working. I don't know why my pen is not working. Wait. Yes, it's okay now. So if I talk about an MSc class, suppose if 40 students are there, it means the strength is 40. Can you tell me that if 40 students are applying for a job, all 40 will get a job? Yes or no? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Now, why this No, is ma'am. so? Depends, ma'am, on the On what? It depends on what? availability of the seat. Yes, that is also a factor. But what is the deciding factor? Like how the employer will get into you to just shortlist you for interview? What is the basic step? What is the crucial step for your screening? Skill set. Yeah, skill Skills. set. But where you present your skill set, your experience, where are you Your from? CV. Yes, right. Your So CV. CV plays a very crucial role in your selection. Like if I am standing in ICER, it is just because of my cover letter, which I have drafted, and also because of my CV. Obviously, हमें skill sets तो चाहिए ही होते हैं, but the most importantly is how you just present yourself in front of all the employer, because obviously they are very much qualified, they are highly qualified, and they want such a candidate who have all the skill set, who have such skills that they can present whatever they have in them, whatever they have achieved throughout their professional life to the screening committee. So आज का जो सेशन है वो प्योरली इसी पे रहने वाला है कि हाउ यू कैन क्राफ्ट अ कवर लेटर, हाउ यू कैन ड्राफ्ट अ रेज्यूमे,
what is CV. मैं CV बोल रही हूँ, मैं resume बोल रही हूँ. So what is the basic difference in between CV and resume? So if I talk about the recent graduate, whether a BSc or MSc, so both these are recent graduates, so they don't have that much of experience. So I will talk in terms of resume. Like if you are applying for a job, you will not uh, email your CV, because obviously in CV you have detailed version of everything, but resume is a concise summary of whatever skill set, whatever qualification you have up till now. So let's move further. So as I have mentioned, resume is nothing but a concise summary of your education. Like if you are a MSc candidate, or if you are pursuing MSc, you will write that you are your MSc is running, your masters is running in whatever subject you are going. And after that, if you have some experience, in experience you can write it down the internship or any workshop you have attended, or what specific skill sets you have related to your topic. Suppose if you are from a biotechnology, so what skill set you have, what practical approach you know in biotechnology, and most importantly accomplishment. If I want to compare in between this candidate A and this candidate B, suppose both he or she, let's suppose दोनों ने ही मास्टर्स किया है. So what will be the next step for their screening? That what unique skill set they have. दोनों के पास में क्या skill sets हैं? Suppose both are from biotechnology, so both must be having same skill set probably, but what will be the deciding factor? Their level of accomplishment. Like if the A candidate has some unique accomplishment, definitely the screening committee will hire the person A. So a differentiator must be there in your CV, because as we are from a biology background, we know that there are limited scope. Look, I'm not disheartening anyone, but yes, already we have narrowed our scope. Like we are from biology, we have to be extraordinary to get some job, because already there is a shortage. So we are running out of job currently in biology background. So accomplishment is the very main task. Now it act as a marketing tool. So your resume is your marketing tool. It act as your portfolio. It act as your representative. Like it should be uh, it should told your whole story, like who you are, from where you are, and what experiences do you have, what education you have, what qualification you have, what are your accomplishments, and what are your skills. So this is resume. Now I was talking about the difference between CV and resume. So CV is for people like me. Like I have completed my PhD and I'm currently employed as a postdoctoral researcher at an institute. So I have so many years of experience. So I will not draft resume, I will draft CV. Like if an university professor will apply somewhere, so definitely he or she will be using his or her CV and not resume. Resume are for beginners, like you all people. You are just masters, so you don't have that much year of experience. So a CV represents a full history of your academic accomplishment, while a resume is a concise summary of your qualification only. So not elaborating this, let's come to the main point. So there are some guidelines which you should follow before drafting your resume, because obviously we go for drafting like this. I have also gone through so many resume from different candidates. So they, what they do, they write their name XYZ, whatever their name, and they are from which institute, they have done 10th, 12th, and then BSc, and then masters, and likewise. And this is the very old one. No one will accept this resume, because सबको ही क्या चाहिए, सबको ही बहुत ही appealing and बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, सारी चीज़ें concised way में. It should be amazingly and it should be creatively presented in a piece of paper. Most of the people think that it should be more than 2 pages. Is it so? No. What will you write in 2 pages? Because you are a recent graduate. So for a recent graduate, only 1 page is sufficient. 1 page is more than enough.
जो हिंदी में बोलते हैं, जितना कम में अपनी बात रख पाओ उतना ज्यादा वो बात क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सो लाइकवाइज़ एक पेज में ही आप अपना सब कुछ बताओ एम्प्लॉयर को, बिकॉज़ दे डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू सो मेनी पेजेस, बिकॉज़ दे विल शॉर्टलिस्ट, सपोज़ फॉर अ जॉब देयर इज़ अ वैकेंसी ऑफ ओनली 1, only they have vacancy of only 1 post, they will just shortlist more than 20. So they don't have that much of time to go through all the pages of all these CVs, they all the resumes they have received. So obviously it should be different from each other. एक डिफरेंशिएटर होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं एनालाइज कर रही हूँ 20 सीवीज या 20 रेज्यूमेस, सो आई विल जस्ट पिक वन विच इज द मोस्ट अपीलिंग वन, यानी जो जितना ज्यादा क्रिएटिव या अमेजिंग दिखेगा मैं उसे पिक कर लूंगी कि हाँ मुझे इसको देखना है कि व्हाट इज इनसाइड इट. सो लाइकवाइज 1 page आपको रखना है because you are recent graduate, you don't have that much year of experience, and after that a layout is very much important. Like you have to use font. Size का रहेगा font का 10 to 12, and after that you can use 14 to 20 for main points or for your heading, बट नॉट मोर देन दैट, क्योंकि इससे ज्यादा आप करेंगे तो 1 पेज जो होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, उसमें पूरी चीजें आ नहीं पाएंगी, बहुत हैफाजार्ड हो जाएगा एंड वो लेजिबल नहीं रह जाएगा. आफ्टर दैट द मेजर टास्क इज टू एलिमिनेट ऑल द टाइपोज, ऑल द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल errors, because obviously if you are presenting yourself in front of the screening committee there should be no typos, no spelling or grammatical error. You can't say that ये तो हो गया, ये तो मैंने कर दिया, no, because वो impression, first impression is the last impression in front of the screening committee. If you are committing such a silly mistake, nobody will get over your resume and nobody will hire you. क्यों कोई हायर करेगा? बिकॉज आप तो स्क्रीनिंग लेवल में ही फेल हो जा रहे हो क्योंकि आपने बहुत ही सिली मिस्टेक करी है. सो गो थ्रू इट. जो भी आपने ड्राफ्ट किया सिर्फ एक पेज आपको पढ़ना है क्योंकि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है. तो आप ये नहीं कर सकते. किसी ने शार्क टैंक देखा होगा तो देखा होगा कि किसी ने आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कुछ तो भी उसका ब्रांड था और उसने क्या किया था, बैनर लगाया था और बैनर में मोबाइल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 9 डिजिट्स रखा था और उस पे एक जूरी मेंबर की नजर गई थी और उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया था कि व्हाई देयर इज ओनली 9 डिजिट इन अ फोन नंबर, बिकॉज वी हैव 10 डिजिट्स इन फोन नंबर. सो इस टाइप का अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो वो स्क्रीनिंग कमिटी इतनी ज्यादा क्वालिफाइड होती है कि वो सिर्फ एक लुक देख के बता सकते हैं कि क्या मेजर मिस्टेक है. सो काइंडली अवॉइड दैट. नाउ टेलर each content of your resume as per the requirement. Incorporate keywords, phrases from the job description. This is the most important point. Write it down. This is the most important point because this will increase your scan result in front of the employer. Because जब बहुत सारे resume आते हैं एक job के लिए तो जो hiring manager होता है या जो HR होता है वो क्या करता है, कुछ keywords डालता है. Keywords related to the एडवर्टाइजमेंट में जो भी आपके मेंशन होता है कि पोजीशन फॉर एन इंटर्नशिप, पोजीशन फॉर JRF, पोजीशन फॉर SRF एंड वॉट एवर, तो प्रोजेक्ट का नाम भी लिखा होता है. सपोज कि वो प्रोजेक्ट जो है वो फूड टेक से है या माइक्रोबायोलॉजी से है या लेट्स से प्रोटीन प्यूरिफिकेशन से है. सो यू हैव टू मेंशन कीवर्ड रेलेवेंट टू दैट डोमेन सो दैट जब भी वो सर्च करे HR उसको वो कीवर्ड मिले एंड वो उसको क्या करे, उसको शॉर्टलिस्ट करे. अगर आप जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसे कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे सो दे विल जस्ट रिजेक्ट योर रेज्यूमे. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's begin general resume guideline. So whatever information you are furnishing your resume, it should be in reverse chronological order. It means if you will write your resume, if you will draft your resume, you will firstly write the MSc in whatever year, like let's say 2025, then BSc, then 12th, and then 10th, and not in the order 10th, 12th like people used to do. BSc no, सबसे रिसेंट, सबसे पहले कि आप करेंटली आपने आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो सबसे पहले जानना चाहेगा कोई, क्योंकि ऑब्वियसली हम लास्ट डालेंगे. MSc हमने डाला है तो बट ऑब्वियसली कि BSc भी किया ही होगा, 12th भी किया ही होगा, 10th भी किया ही होगा. सो उन्हें जानना रहता है करंट एफिलिएशन हमारा कि हम कहाँ से हैं, और जितना ज्यादा
एक चीज मेरी बात गांठ मान लो कि जितना ज्यादा तुम प्रेजेंट करोगे अपना इन्फॉर्मेशन, जितना प्रेजेंटेबल तुम अपना सीवी दोगे और रेज्यूमे दोगे, उतना शॉर्टलिस्ट होने का चांस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर बहुत हैफाजार्ड मचाओगे रेज्यूमे में, कुछ भी कुछ लिख दोगे, तो अल्टीमेटली वो स्कैन होने वाला नहीं है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज मोस्ट रेलेवेंट टू द पोजीशन एंड सिलेक्टिव अबाउट व्हाट यू इंक्लूड। दैट द सेम थिंग विच आई वाज सेइंग टू यू, कि सबसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सपोज कि इंटर्नशिप के लिए आपको रेज्यूमे ड्राफ्ट करना है, तो इंटर्नशिप के लिए जो भी स्किल सेट्स आपको चाहिए उसको पहले प्रेजेंट करें। बिकॉज हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई भी चीज, जैसे अगर हम गूगल में भी कोई चीज सर्च करते हैं, कुछ भी हमें नहीं पता है, तो अगर सर्च रिजल्ट लेट से आता है तो हम भी पसंद नहीं करते, हमें भी सब चीज एक क्लिक में चाहिए एंड बहुत ही कम टाइम में चाहिए। तो लाइकवाइज हायरिंग मैनेजर्स को भी सारी चीजें, बहुत चीजें स्कैन करनी होती है, उनके पास सिर्फ एक पर्सन का सीवी या रिज्यूमे नहीं है, दे हैव सो मेनी नंबर। सो ऑन बेसिस ऑफ the most relevant keyword, they shortlist. And after that, use consistent verb tense, use past tense for roles completed, and present tense for position you are currently employed in. And after that, some job boards and employer site ask you to upload a plain text version of your resume. Like कहीं पे आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे वो पीडीएफ के बजाय प्लेन टेक्स्ट डालने को बोलती है, तो सिंपली यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट और कुछ नहीं। नाउ द मेजर or the essential sections of a resume. So सबसे पहले header and contact information. I will also provide you the sample, so don't worry. ये जो हम लोग इतना सीख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी भी कि क्या क्या चीजें कैसे लिखते हैं एक रेज्यूमे में। अगर आप इंटर्नशिप या किसी भी चीज के लिए बिगिनर हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। नाउ सबसे पहले हेडर एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में यू शुड इंक्लूड योर नेम, एंड नेम शुड बी इन बोल्ड लेटर्स, इन कैप्स लेटर, and after that from where you belong, city and state without any spelling mistake, your current phone number, and phone number ऐसा नहीं कि जो डेड पड़ा हुआ है, फोन लगाने पे फोन नहीं लगता है, प्रेफर करना कि जिसमें हमेशा नेटवर्क रहता है, जो रीचेबल है, वो फोन नंबर डालना। आफ्टर दैट ईमेल आईडी। अब मुझे नहीं लगता कि अगर आप 2025 में हैं एंड अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, सो यू आर नॉट लिविंग इन 2025, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा जिनके पास में अभी भी ईमेल आईडी नहीं है। आई डोंट नो कि किस सदी में वो बच्चे या वो पर्सन जी रहे हैं। सो काइंडली मेक एन ईमेल आईडी, एंड ईमेल आईडी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आई हैव रेड मेनी जूनियर्स का, मैंने देखा है कि आई एम स्वीट दिस, आई एम स्वीट, आई एम अमेजिंग। नो, इस टाइप का अनप्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। लाइक मेरा, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, तो अभी मेरा जैसे है जो nisha.pdf, ये तो चलो मेरा इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी है, बट मेरा पर्सनल ईमेल आईडी भी कैसा है, अगर मैं यहाँ लिख भी देती हूँ किसी को मुझसे कुछ इंटरेक्शन करना हो तो nishagupta1210@gmail.com. It should be like this, simple, no amazing, nothing, कोई भी किसी भी टाइप का एडजेक्टिव क्यों यूज करना है अपने, वो हम बचपन में करते थे, बट इस टाइम पे एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाइए जो कि वेरीफाइड हो, जिसमें मोबाइल नंबर एंटर्ड हो, और जिसे आप हमेशा देखने हो, जो ऐसा नहीं कि आपको मेल आ रहा है एम्प्लॉयर का और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो वो, अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर फ्रॉम अ रिसर्च फील्ड, यू शुड हैव अ ऑर्किड आईडी, बट फॉर श्योर आप लोगों का अभी नहीं होगा क्योंकि आप लोग तो अभी बडिंग स्टेज में हैं। सो अवॉइड दैट। एंड ऑब्वियसली आपके पास लिंक्डइन तो होगा ही। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए, आपको कुछ अच्छा पोजीशन चाहिए, तो यू शुड यूज लिंक्डइन एज योर व्हाट्सएप, because so many information, so many job opportunities are posted every day by so many people, so you can check it out. एंड ऑल्सो जो भी कंपनीज है लाइक एडुफेब्रिका हमेशा अपना पेज मेंशन करती है, हर एक चीज, जो भी एक्टिविटीज होने वाले, जो भी वर्कशॉप होने वाले हैं। सो लाइकवाइज यू हैव टू विजिट लिंक्डइन। जिस भी कंपनी में आप करना चाहते हैं इंटर्नशिप, या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप कुछ करना चाहते हैं, यू हैव टू फॉलो देयर रिस्पेक्टिव पेज, बिकॉज सबको पता चल गया है कि 21st सेंचुरी में social site is the only way to communicate. social site, क्योंकि यूथ कितने परसेंट है, 65% यूथ है इंडिया में। सो अगर उन तक कोई बात पहुंचानी है, सो बेटर टू यूज डिफरेंट सोशल साइट्स। सो लिंक्डइन आईडी बना लीजिए, उसमें प्रॉपर, उसमें भी चीजें मेंशन करिए कि व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन, या फिर करंट एफिलिएशन आपका क्या है, एंड ये सारी चीजें। सो टिप्स क्या क्या हैं जो मैंने अभी बताया, वही सारी चीजें हैं।
नाउ मेक श्योर योर ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड वेब पेज आर एम्प्लॉयर अप्रोप्रिएट एंड टाइपो फ्री। जो मैंने बताया कि आई एम अमेजिंग निशा मैं नहीं लिख सकती, आई एम स्वीट निशा मैं नहीं लिख सकती, आई विल राइट माई फुल नेम। और अगर मैं फुल नेम नहीं भी लिख रही हूँ तो इट शुड बी इतना तो सिंपल होना चाहिए कि किसी को पढ़ के हंसी ना आए। लाइकवाइज नाउ फुल एड्रेस इज ऑप्शनल, किसी को आपके घर नहीं जाना है, सो इट शुड नॉट बी लाइक कि पूरा पूरा आपको एड्रेस बताना है। पूरा एड्रेस आपको तब बताना होता है जब उन्हें कुछ डिस्पैच करना होता है, लाइक ऑफर लेटर कुछ लोग ऑफलाइन भेजते हैं। सो यू डोंट नीड टू मेंशन, जब तक आपको पूछा ना जाए यू डोंट नीड टू मेंशन योर फुल एड्रेस। एंड आफ्टर दैट voicemail should be set up with a greeting that includes your first and last name. सपोज कि जैसे आप नहीं अवेलेबल हैं तो अपने ईमेल में भी आप डाल के रख सकते हैं कोल्ड ईमेल, कि अगर आप नहीं है तो किसी का अगर मेल भी आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाए। एंड आफ्टर दैट डू नॉट इंक्लूड सोशल सिक्योरिटी नंबर, birth date, gender and marital status. Unless mentioned, you don't need to mention these, क्योंकि इससे एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं है। अनलेस वो बहुत ज़्यादा अलग टाइप का एम्प्लॉयर हो, उनको कुछ मतलब नहीं होता है कि आप, हाँ एज क्राइटेरिया होता है कि आप इतने साल के हैं कि नहीं, वहाँ पे मेंशन करना होता है, बट अदरवाइज आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एजुकेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, हेडर एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इट शुड बी बोल्ड इनफ, इट शुड बी अपीलिंग, कि कोई भी देखे तो पता चल जाए कि व्हाट्स द नेम ऑफ द कैंडिडेट, इन विच सिटी ही और शी लीव, what is his or her phone number, email and all contact information. And apart from that, you have to mention your education, most importantly the name of the school from which you have completed your 12th standard, your college or university name. And after that, if you have done some kind of diploma or some other degree courses, so you have to mention those universities name. Now after that, GPA is required for some field. You can also mention your GPA, CGPA, and whatever percentage. And after that, list your highest degree first. Like I told, if you are a master student, you will firstly write the master's, then bachelor's, then 12th, and something like that. And after that, the optional element are education abroad, related coursework, and academic honors. ये भी आप mention कर सकते हैं अगर आपके पास है तो. And most importantly, you have to spell out your full name of the university. Like if जैसे कि मैंने कंप्लीट किया है एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस, अपना बैचलर्स मैंने यहाँ से कंप्लीट किया, एक ऑटोनमस बॉडी से मैंने किया था। सो आई ओनली नो दिस एनपीजी, बट आप नहीं जानोगे एंड एम्प्लॉयर को नहीं पता ऑब्वियसली, कोई अनलेस बहुत बड़ा बॉडी है कोई नहीं जानेगा उसको। सो यू हैव टू स्पेल दिस आउट that this is Nagarjuna Postgraduate College of Science. So don't use abbreviation in the name of your university, in the name of your institute, because nobody knows that what it stands for. So you have to include full name of your university, full name of your institute. Now next, experience. If you have some years of experience, you can mention that on what position you are hired for, in which organization, and from when to when. You have to mention that, and this too in reverse chronological order. Suppose आप 2024 में कहीं पे internship position में थे, तो you will write intern and institute name, and 2023 से 2024 तक अगर आप थे वो mention करेंगे. And after that, accomplishment statement in bullet form, कि वहाँ पे आपने क्या skill set सीखी, वहाँ पे आपका क्या specific role था. So यहाँ पे लिखा है जैसे मैंने, list experiences in reverse chronological order. Now, what is the tips? What are the tips? List your highest degree first, followed by other degrees you have received. Include paid or unpaid position, internship, military service, research, leadership experiences related to your objective. जो भी आपका mention है, जिस भी आप job के लिए apply करें, if you have done some internship, whether it is online or offline, because obviously you are from a COVID batch, तो आपने बहुत चीजें online करी होंगी. So you should mention it. कि ऐसा नहीं है कि online की value नहीं है. You should mention it जो भी आपने किया है, because in your resume it is already short. So you have to include each and every achievement, each and every information. इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेज को भरना है, जो भी obvious information आपके पास में है, present it to the employer, because on the basis of that only you will be hired. So you have to take all this into your consideration. Now next part, building your resume. और भी कुछ additional section होते हैं, like
आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल और आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। यहाँ तक जो मैंने बताया इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कितने भी बडिंग हो, ये सारे पार्ट्स को तो आप मिस नहीं कर सकते। यहाँ से जो मैं बता रही हूँ वो उनके लिए है जिन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। लाइक एमएससी के बाद अगर आपने 1 साल कहीं इंटर्नशिप किया है, 1 साल कहीं जेआरएफ की पोजीशन में थे, या कुछ भी आपने किया है, सो आपका एक स्टेप ऊपर जाता है रेज्यूम में। आप एकदम बर्डिंग स्टेज में नहीं है, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन समथिंग। सो आप क्या करेंगे, आप अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल या फिर एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इंक्लूड करेंगे। एंड वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी नॉट लाइक अ पैराग्राफ, यू शुड अवॉइड पैराग्राफ, इट शुड बी ओनली इन 3 to 5 सेंटेंसेस। एंड समरी होना चाहिए जो भी आपने सोचा है अपने फील्ड में करने का। सपोज आई एम अ बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट, सो व्हाट आई विल राइट, मैं क्या चाहती हूँ करना, आई वॉन्ट टू यूज द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वी हैव for the human welfare, so that is my most important objective. But how I will do it, I will not directly write it कि मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ह्यूमन वेलफेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज दैट इज अ वेरी इम्प्रैक्टिकल स्टेटमेंट। वो सबको पता है कि बायोटेक में हम वही करते हैं। सो व्हाट आई विल राइट, मैं कुछ ऐसा पोजीशन चाहती हूँ जहाँ पे मुझे फ्रीडम मिले कि मैं जो भी मैंने सोच के रखा है, जो भी मेरी आइडियोलॉजी है, जो भी मेरी कैपेबिलिटीज है, विथ दैट एंड विथ माय एक्सपीरियंसेस, विथ माय स्किल सेट्स, मैं अपने सब्जेक्ट का बेटर आउटकम लेके आऊं। एक ऐसा मुझे इंस्टीट्यूट मिले, एक ऐसा मुझे नीश मिले जहाँ पे मैं काम कर सकूं, ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना है। And after that include highlights of your experience, education, qualification and career objective that are most relevant to a specific field or position, जैसे कि मैंने बायोटेक का एग्जांपल दिया। And after that a one line description of the position you are applying for, typically includes job title and company name। आप ये सारी चीजें आप कवर लेटर में भी मेंशन करते हो, ये सारी चीजें। नाउ व्हाट इज द टिप, your resume can include either a professional profile or an objective statement but not both। अगर आप ऐसा हेडिंग डाल रहे हैं प्रोफेशनल प्रोफाइल and after that you are including objective statement in a single resume, then this is the wrong way to do so। either you can include professional profile in which you have to mention all these things which I have mentioned, or else you can mention only a single objective statement, then you can write your objective statement, then you can follow the whatever I have told in my previous slides। Now skills, Excuse me, skills ma'am. में क्या, हाँ yes, Ma'am, like you said, we can add as a professional जो भी है तो in for if we are not doing like we are doing 1 month internship now only, so we can that as the objective statement, yeah, we need to mention there what we you need can to write, mention. आप ऐसा लिख सकते हो कि I am currently an intern or I am currently doing some sort of project in whatever institute and I am expecting to get some position in a very well deserving firm as per my capabilities, as per my skill set। आप वैसा लिख सकते हो क्योंकि obviously आप एक intern है, तो आप It's a 45 days training and internship, so we can add as a objective statement, or we can add as a internship separate heading as a internship. In that we can mention. No, in that case you have to mention your overall objective statement, like what you want to do, and after that after mentioning in one line you can mention it, currently I am doing internship in this and in this topic, so it will be justified कि आप broader way पे क्या सोचते हो, longer run में आप कहाँ जाने का सोचते हो, and currently आप क्या कर रहे हो, तो वो 2 points में 2 bullets में आपका वहाँ पे justify हो जाएगा। Okay, ma'am. So now next skills, so this is the most important one जो कि differentiator होता है if two people are applying for a same job। अगर A apply कर रहा है and B apply कर रहा है, so they will be judged on the basis of whatever skill set they have। like if they are from biotechnology, so how much practical knowledge they have, on the basis of that they will be evaluated। so what skill sets, some soft skills are also required, not some, so many skill sets are required, soft skills are also required apart from the exact laboratory skill set। so अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के हो, इफ यू आर फ्रॉम अ बायोटेक और लाइफ साइंसेस के किसी भी ब्रांच के हो, अगर माइक्रोबायोलॉजी के हो, फूड टेक के हो,
या फिर अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हो। सो ये सारे ही फील्ड में अगर आपने अभी तक किसी भी टाइप का, इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू एनी इंटर्नशिप, एनी वर्कशॉप, एनी सेमिनार, एंड किसी भी मोड पे, हाइब्रिड, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वॉटेवर, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो 7 डेज का हो, चाहे वो 30 डेज का हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मास्टर्स में हमेशा जो 4th सेमेस्टर होता है दैट इज ऑप्शनल, कि आप जाके डिसर्टेशन करें या फिर आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़े। और इन सम कॉलेजेस इट इज 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का तो प्रोजेक्ट मिनिमम होता ही होता है। सो वो आपका पहला स्टेयर होता है आगे के रिसर्च वर्ल्ड में जाने का। सो अगर वो भी आपने नहीं किया है, इफ यू हैव चूजन थ्योरी एट दैट टाइम, so in that case also you need to do some kind of internship, some kind of workshop and seminar in different areas related to your subject only. So ये क्या है, अगर आपने ये सब नहीं किया है so definitely आपके रेज्यूमे में एक बहुत बड़ा लैकिंग है, जो कि आपको क्या करेगा, पीछे लेके जाएगा। बिकॉज आज के डेट में एक पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना स्किल सेट के थ्रू स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरा बेटर हो जाए, या मेरा मैं ये सीख लूँ, या मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके अपने सीवी में एक और स्टार बढ़ा लूँ ताकि मेरा जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो जाए। सो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर आप कोई ऐसे हैं जिन्होंने तुरंत अपना करियर अभी स्टार्ट किया है लेकिन उन्हें अभी ये सब चीजें नहीं पता है, सो मार्क माई वर्ड, यू नीड टू गो इनटू एनी काइंड ऑफ इंटर्नशिप कीजिए आप। भले भी आपको रिसर्च वर्ल्ड में नहीं जाना है, आपको हायर एजुकेशन में या एकेडेमिया में नहीं जाना है, स्पेसिफिकली पीएचडी नहीं करना है, तब भी क्या लगेगा, ये सारे स्किल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली जाएंगे इंडस्ट्री में। why that industry will hire you even if you don't have the basic skill set that is required to be get hired? क्योंकि उन्हें तो चाहिए ही कि अगर कोई कैंडिडेट के पास कुछ भी नहीं है तो वो कैसे आपको हायर करेगा। सो इस चीज का ध्यान दीजिए, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी से जिनके पास भी ये सब नहीं है, किसी भी टाइप का, उनको अलग से एकेडमिक्स के अलावा, लाइक apart from their degree they don't have anything, so they need to go through any internship, workshop and seminar. Now इसके क्या क्या टिप्स हो सकते हैं? सो जैसे कि मैंने बताया, यू हैव टू इंक्लूड वर्ड्स, फ्रेजेस, कीवर्ड्स जस्ट रिलेवेंट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द एम्प्लॉयर। सो ये सारा कर सकते हैं, बिकॉज जितने भी हमारे सीवीज जो मैं बात कर रही थी एचआर ट्रैक करता है, दैट इज थ्रू द एटीएस। एटीएस के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज द एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। सो यू कैन इंक्लूड दैट इन योर सीवी। अगर आपके पास रिलेवेंट कीवर्ड्स नहीं है, दैट एटीएस विल बी अनेबल टू just scan that keyword and your CV or your resume will not get shortlisted. So आपको वहां से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही नहीं, जो कि फर्स्ट स्टेप था। आपने फर्स्ट स्टेप में ही गलती कर दी। जो पिलर है, अगर घर का हम लोग पिलर अच्छे से नहीं डलवाएंगे तो जो घर बनेगा वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होगा, वो तो गिर जाएगा। अगर थोड़ा सा भी बारिश हुआ या साइक्लोन आया, स्टॉर्म आया, तो वो तो गिर जाएगा। तो लाइकवाइज अगर आपने सीवी ही अच्छे से नहीं ड्राफ्ट किया, रेज्यूमे ही अच्छे से ड्राफ्ट नहीं किया, तो वो कैसे कोई आपको हायर करेगा। अगर मैं अपना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करूंगी तो कोई मेरी बात क्यों सुनेगा, कोई मुझ में इंटरेस्ट क्यों लेगा। सो यू हैव टू टेक केयर कि आप वैसा फ्रेज, वैसा कीवर्ड आप डालें। ऑनलाइन एआई का आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते, तो उस एआई को बहुत अच्छे वे पे यूज करो अपने बेनिफिट के लिए। नाउ बी श्योर टू इंक्लूड योर ट्रांसफरेबल स्किल्स ऑन योर रेज्यूमे। अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल सेट है जो कि आप उसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो, या एक से दूसरे तीसरे लोगों को सिखा के उसको आप क्या कर सकते हो, कमर्शियलाइज कर सकते हो, तो वैसे स्किल सेट्स भी आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने सीवी में या रेज्यूमे में इंक्लूड करना चाहिए। Skills may be grouped into subcategories such as laboratory skills. जैसा मैंने कहा था, if you are from a biotech or life science niche, you can include whatever wet lab technique you have learned. And apart from that, soft skills, in silico lab में आपने क्या क्या काम किया, you can also include that in your CV. Dry lab and wet lab दोनों का अलग demarcation करके, like software skills यहाँ पे mention है, research techniques, language skills, communication skills and administrative और professional skills। आपको क्या क्या चीजें आती हैं उसको अगर आप अलग कैटेगरी करके लिखेंगे, कैटेगराइज करके लिखेंगे, दैट विल बी इजियर टू ग्रास्प बाय द एम्प्लॉयर। एंड आफ्टर दैट कंसिडर इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी लेवल, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, इंटरमीडिएट, बिगिनर। हमेशा किसी भी लैंग्वेज को अगर आप मेंशन करें दैट यू नो इंग्लिश, दैट यू नो हिंदी, दैट यू नो एनी रीजनल लैंग्वेज,
So you need to mention ki how much proficient, whether you can write it in that particular language, whether you can speak, whether you can communicate. So आपको वो लेवल मेंशन करना होगा कि आप इंटरमीडिएट हैं, आप प्रोफिशिएंट हैं, आप एक्सपर्ट हैं या बिगिनर हैं एंड व्हाटएवर. एंड लाइकवाइज आपको अपना टेक्निकल स्किल में भी मेंशन करना होगा. लाइक मैं यहाँ पे सेल कल्चर का काम करती हूँ, तो मुझे उसमें भी सेल कल्चर आप लोग नहीं जानते होंगे. लाइक जैसे मैं प्रोटीन में काम करती हूँ, तो प्रोटीन में भी अगर मैं उसमें स्पेसिफाई ना करूँ कि मैं कौन सा टेक्निक यूज करती हूँ फॉर द प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, अगर मैं बोल रही हूँ मैं क्रोमेटोग्राफी यूज करती हूँ, वेस्टर्न ब्लॉट करती हूँ, सो उसमें भी मुझे मेंशन करना होगा दैट आई नो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट. वेस्टर्न ब्लॉट में मैं मास्टर हो चुकी हूँ, मैं करती हूँ, तो किस लेवल का मैं करती हूँ. तो प्रोटीन के भी जो सब नीश है वो आपको मेंशन करने की जरूरत है, बिकॉज प्रोटीन एक डोमेन है, बहुत बड़ा है, बहुत लोग प्रोटीन पे काम कर रहे हैं. बट क्या मैं एक रिसर्चर जो काम करे दूसरा भी वही कर रहा है? नहीं. अलग अलग स्किल्स होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, रिसर्च टेक्निक्स, तो आपको वहां पे मेंशन करके लिखने की जरूरत है. बिकॉज जो जॉब आते हैं आजकल के, वो स्पेसिफिकली आते हैं कि हमेशा वहां पे कीवर्ड लिखा रहता है कि द कैंडिडेट शुड बी मास्टर इन वेस्टर्न ब्लॉट, हाइब्रिडाइजेशन एंड सदर्न ब्लॉट एंड लाइकवाइज. तो आपको उन सबको मेंशन करना है. आप ये नहीं देख सकते मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो बहुत बड़ा है, उसमें क्या आता है आपको? सब कुछ आता है, सब कुछ तो सबको नहीं आता है. तो आपको वो सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत है. नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएटर की जो मैं बात कर रही थी, इट इज ऑनर्स एंड अवार्ड्स. क्या क्या आपको अवार्ड मिले हैं, और ये अवार्ड कैसे हो सकते हैं? अगेन इन क्रोनोलॉजी, रिवर्स क्रोनोलॉजी. आपको अपने मास्टर्स में क्या क्या अवार्ड मिला है, बैचलर्स में क्या क्या मिला है, एंड अगर आपको कोई स्कूल टाइम से कोई स्कॉलरशिप, कोई किसी टाइप का कोई ग्रांट रिसीव हुआ है आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स के थ्रू, या किसी कंपटीशन में आपने किया हो तो आपको कोई ग्रांट मिला हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा टॉप 3 के हो, टॉप 3 सीबीएसई के, या फिर अपने कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो वो सारी चीज़ें. डेट एंड ईयर ऑल्सो वो भी मेंशन करें. सो टिप क्या क्या है? इफ स्पेस अलाउज, यानी आपके एक पेज के Excuse बाद me, भी ma'am. अगर, हाँ Can we mention the exams like GATE, GPAT, and IIT JAM, या chemistry and biotech in डेफिनेटली this section? डेफिनेटली मैं उस पे आ ही रही थी. जैसे Okay. अगर आप मास्टर कर चुके हैं, वो तो मतलब ब्रह्मास्त्र है आपका. अगर आप CSIR हैं, अगर आप गेट हैं, इफ यू आर अ डीबीटी फेलो, और इसके अलावा और भी जो एग्जाम्स होते हैं लाइक JNU के, या एक और होता है गेट बी या व्हाटएवर, जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो अगर आप क्वालिफाइड हैं तो वो आइसिंग ऑन द केक होगा आपके सिलेक्शन का. क्योंकि अगर आप GRF पोजीशन के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, तो आप तो कई जगह पे एलिजिबल भी नहीं होते. एलिजिबिलिटी कब मिलती है आपको? जब कोई GRF उस इंस्टीट्यूट को नहीं मिलता है, तब दे ऑफर पोजीशन फॉर व्हाट, फॉर नॉन GRF, फॉर नॉन नेट कैंडिडेट्स, बट फेलोशिप कम होती है. सो ये अगर आपके पास है तो ये आपको मेंशन करना ही है कि आपने कौन से ईयर में क्वालिफाई किया था एंड कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया था. उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं अपने अवार्ड का. लाइक अगर आप एग्जाम का दे रहे हैं तो किस सब्जेक्ट से आपने दिया था. लाइक गेट में भी BT, एक्सेल, ये सब. DBT का कैटेगरी 1 है कि 2 है, JNU का कौन से ईयर का, ये सारी चीजें. उसके बाद पब्लिकेशंस एंड प्रेजेंटेशन. सो पब्लिकेशन ऑब्वियसली अभी आपके पास नहीं होगा, वो रेयर है. किसी ने अगर काम किया है 2-3 साल तो उनके पास होता है पब्लिकेशन. बट इफ यू हैव एनी पब्लिकेशन, एनी रिव्यू, एनी कॉन्फ्रेंस अगर कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग है, एंड अगर आपने कहीं कुछ प्रेजेंट किया है, कहीं पे कुछ लेक्चर दिया है, कहीं पे कुछ टॉक दिया है, इनवाइटेड टॉक, यू कैन इंक्लूड ऑल दिस थिंग टू जस्ट एनहांस योर सिलेक्शन चांसेस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा और क्या, आप इसको भी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हमेशा रिसेंट फर्स्ट होगा एंड ओल्डर वन कहाँ जाएगा, वो बॉटम में जाएगा. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कभी कुछ ऐसा आर्टिकल या फिर कुछ ऐसा राइटिंग स्किल आपके पास रही है कि वो हमेशा पब्लिश हुई है, तो आप उसको भी बता सकते हैं कि मेरा ये जो भी था, वो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कुछ लिखा है, कुछ भी राइटिंग वर्क अगर आपका पब्लिश्ड है, तो वो भी आप हमेशा प्रेजेंट कर सकते हैं. Now, apart from that, volunteer activities and community services. Like इसको भी आपको Excuse हमेशा me, हर एक चीज, हाँ ma'am, if our article is accepted but not yet published,
So can we Yes, mention you that can in include public? that. In that case, you will have definitely DOI. So you can Okay. include that. एक्सेप्टेंस के बाद हमेशा जर्नल में वो पेपर ऑनलाइन थोड़े टाइम बाद आता है प्रोसेसिंग के बाद. अगर आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया है तो यू मस्ट हैव द टाइटल एंड ऑथर नेम होगा आपके पास, एंड इन विच जर्नल यू हैव कम्युनिकेटेड एंड इन विच ईयर यू हैव कम्युनिकेटेड, एंड आफ्टर दैट DOI. अगर आप इतना भी इंक्लूड करते हैं, एंड इसमें भी अगर आप फर्स्ट जैसे एक्स ऑथर, वाई ऑथर, जेड ऑथर, तो अगर आप वाई ऑथर हैं तो यू हैव टू अंडरलाइन और इधर यू कैन हाईलाइट अगर आप कलर्ड रेज्यूमे कहीं दे रहे हैं तो. ये सारी चीजें. तो ऐसा नहीं Okay. होता कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ ना कुछ तो होता है. DOI हमेशा इंक्लूड करें बिकॉज एम्प्लॉयर उसको क्लिक करके ट्रैक करते हैं ना. वॉलंटियर एक्टिविटी, आप में से कई लोग NSS में होंगे और उसके अलावा आप कभी क्या बोलते हैं जो क्लास में हम लोग रहते हैं, CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो इंक्लूड कर सकते हैं, या स्टूडेंट यूनियन में आप कभी कुछ रहे होंगे, या फिर कोई भी कोऑर्डिनेटर किसी चीज़ के, किसी इवेंट कोऑर्डिनेटर, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, कल्चरल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, या कुछ भी इवेंट कोऑर्डिनेटर भी आप अपने कॉलेज में या स्कूल में रहे हैं. यू हैव टू इंक्लूड दोज थिंग्स ऑल्सो बिकॉज दैट शो योर वॉलंटियर एक्टिविटी. या फिर यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में बहुत बार क्या होता है, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होता है तो उसमें भी आप वॉलंटियर करते हैं, या आप कई बारी किसी इवेंट में ही आप सारा कुछ इवेंट ही ऑर्गेनाइज कराते हैं एज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. तो इससे आपका दिखता है कि हाँ आपके में लीडरशिप क्वालिटीज है, आप इवेंट को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं. एंड उसके अलावा क्या क्या इसमें टिप्स हैं. This section is helpful to include if you participate in meaningful community engagement activities not related to your career goals. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड हो. अगर आप किसी सपोज किसी NGO से ही रिलेटेड हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली NGO से रिलेटेड हैं आप, एंड उनके किसी ड्राइव में आप, जैसे कि कई सारे डिजीज का ड्राइव, एड्स का ड्राइव चलता है, अभी TB ड्राइव चल रहा है करेंटली, तो अगर आप उन सब से भी आप एक मेंबर भी हैं, आप ऑर्गेनाइजिंग बॉडी में किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, या आप क्या बोला जाता है अवेयरनेस प्रोग्राम में हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी यू कैन इंक्लूड इन योर CV. तो उससे क्या पता चलता है कि यू आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज अदर देन योर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका नीश है, उससे भी निकल के आप बाहर की दुनिया में भी, सोसाइटी में जो चल रहा है उसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो वो बहुत ही एक अच्छी चीज होती है, एंड ये एज अ ह्यूमन बीइंग भी करना चाहिए, बहुत सारी चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि हम जितना पढ़े हैं हमारी सोसाइटी में हमसे कई लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं. तो अगर हम उनकी किसी वे पे हेल्प कर रहे हैं, किसी NGO से जोड़ के या कुछ भी करके, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात होती है. तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी, एंड आपके CV में भी, रिज्यूमे में भी वो काम आता है. तो वो सब आप कर सकते हैं. उसके अलावा इन्हीं करियर रिलेटेड वॉलंटियर एक्टिविटीज, किसी तरह से आप काउंसलिंग करते हैं, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, किसी को आप कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरिंग करते हैं, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं. क्यों मैं ये सब चीजों पे फोकस कर रही हूँ, स्ट्रेस दे रही हूँ, बिकॉज एज अ फ्रेशर वी डोंट हैव दैट मच ऑफ थिंग. ऑब्वियसली जब भी मैंने मास्टर्स किया होगा, जैसे मैंने 2014 में अपना 12th किया, 2017 में मैं बैचलर्स की, 2019 में मैंने अपना मास्टर्स किया, एंड उसके बाद मैं वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट बनी, एंड उसी यूनिवर्सिटी में मैंने क्या किया, अपना PhD किया, एंड PhD खत्म हुआ है मेरा 2024 फेब में. मार्च में मैंने अलग अलग जगह पे अप्लाई करना स्टार्ट किया, एंड जुलाई में मैं आ गई आइसर में. तो ये मेरा पूरा है. तो ऑब्वियसली जब मैं इस स्टेज में, किस स्टेज में, इस स्टेज में अगर मैं जॉब अप्लाई कर रही होंगी तो मेरे पास ये सारी चीजें तो नहीं होंगी. तो मैं अपने रेज्यूमे में क्या दिखाऊंगी, क्या मैं बस इतना ही दिखाऊंगी कि मैंने 12th किया है, मैंने बैचलर्स किया है, मैं यहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आई थी, यहाँ पे ये लेके आई थी, बस इतना ही दिखाऊंगी? नहीं. तो ये सारी चीजें ही काम में आती हैं आपको जॉब दिलवाने में, क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को भी पता है कि हाँ ये फ्रेश कैंडिडेट है, इसके पास ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो इन सब के बेसिस पर वो आपका सिलेक्शन करते हैं. नाउ रेफरेंसेस. A list of 3 to 5 professional references should be prepared as a separate document. Do not include references on your resume. हाँ, ये चीज तो इम्पोर्टेंट है. रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट. रेफरेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि आप अपने जिस भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, यू कैन पिक सम ऑफ योर प्रोफेसर्स जो कि आपको जानते हैं अच्छे से,
जो कि आपको रेको देंगे, रिकमेंडेशन लेटर देंगे, जो कि आपको कहीं पे भी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने आपको रिकमेंड करना हो, वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। उन प्रोफेसर्स को सिलेक्ट कीजिए, एटलीस्ट 3 यू नीड, मिनिमम 3 चाहिए होता है एंड मैक्सिमम 5, तो जनरली 3 डालने से ही हो जाता है काम। तो 3 लोगों का नाम डालिए, उनका इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी, फुल नेम एंड मोबाइल नंबर, इन सम केसेस मोबाइल नंबर भी लगता है। तो ये तीनों चीज़ें हमेशा एक सेपरेट वर्ड फाइल में बना के रखिए कि कहीं पे भी आपको लगे तो आप उन्हें प्रेज़ेंट कर पाएँ। ताकि अगर इन केस स्क्रीनिंग कमिटी क्या करती है, दे सेंड मेल टू योर रिस्पेक्टिव प्रोफेसर एंड व्हाटएवर रेफरेंसेस यू हैव मेंशन्ड, किसी का भी नाम अगर आपने दिया है तो दे विल मेल टू देम दैट लेट मी नो हाउ द कैंडिडेट इज एंड उनका क्या-क्या प्रोफाइल है। तो उनके तरफ से एक रिकमेंडेशन मेल जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे इवैल्यूएट यू एंड दे विल हायर, और इट डिपेंड्स कि कैसा आपका रिकमेंडेशन जा रहा है, उसके बेसिस पर आपको वो हायर करते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। अब आपको और ज़्यादा मुझसे जुड़ना है, सो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। करेंटली आई हैव मोर देन 702 अभी हैं स्पेसिफिकली। सो आप अगर गूगल पे भी टाइप करेंगे bio.com तो मेरा चैनल आ जाएगा। एंड ये अभी मैं सारे ही एस्पेक्ट्स पे पढ़ाती हूँ, मैं सारे ही एग्जाम्स के लिए पढ़ाती हूँ, जितने भी लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। एंड अगर आप किसी रिसर्च की भी अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए या किसी भी तरह का, तो मैं सब कुछ ही अपने चैनल पे बताती हूँ। सो ये हुआ। अब मैं बताती हूँ एक सैंपल लेके कि अगर हम लोग कभी ड्राफ्ट करते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। सीवी screen, are you guys able to see the screen? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So this is a template for a master or a very fresh candidate, whoever is applying for an internship position या फिर किसी JRF and internship position is equivalent, मतलब उतना ज़्यादा difference नहीं होता है। So firstly you will mention your name and see it is in bold letters. जो भी आपका नाम है आप उसे अच्छे से mention कीजिए। and ये कहाँ से है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस से है। सो उन्होंने वो मेंशन करा है एंड अपना मोबाइल नंबर, एंड उसके अलावा उन्होंने अपना ईमेल आईडी मेंशन करा है। सो यहाँ पे देखिए इतने में ही ये क्या है, हेडर इन्फॉर्मेशन है। हेडर इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि उनका नाम क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है। सो अगर एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना होगा तो सब कुछ मिल गया फर्स्ट में, तो ये चीज़ सॉर्टेड हो गई, हेडर इन्फॉर्मेशन कैसे देना है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव, वर्क स्टडी एलिजिबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट सीकिंग एन ऑन कैंपस जॉब। किसी ने अभी पूछा था कि हम अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हम वो लिखे नहीं, यू हैव टू राइट कि वर्क स्टडी एलिजिबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, यही वाला मत कॉपी कर लेना, अपने से लिखना एक लाइन का। क्या लिखा है उसने, ये वाला लाइन बहुत ही अच्छा लिखा है, सीकिंग एन ऑन कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटी, कि ऑब्वियसली वो एक एलिजिबल, एक कैपेबल अंडर ग्रेड है या फिर पोस्ट ग्रेड है, एंड वो क्या सोच रहा है, एक अपॉर्चुनिटी के सर्च में है। आफ्टर दैट एजुकेशन, एजुकेशन में जो भी उनका है, बैचलर्स ऑफ आर्ट, बीए जो भी, कहाँ से है वो, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, यू विल हैव टू इंक्लूड दैट व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, जो भी ईयर है या जो मंथ है, डेट तो नहीं लिखते हैं, मंथ आपको मेंशन करना होता है। उसके अलावा रिलेटेड कोर्स वर्क, बिगनिंग कॉम्पोजिशन, प्री कैलकुलस, फ्रेशरमैन सेमिनार, जो भी उनके टॉपिक से रिलेटेड था, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री से, वो उन्होंने मेंशन करा है। उसके बाद में स्किल्स, स्किल्स में क्या-क्या मेंशन है, इंटरमीडिएट इन वर्ड, यूज ऑफ इंटरनेट सर्च थिंग, आउटलुक एंड ईमेल, जो भी आपने सीखा है वो सब आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सारी चीज़ें आती हैं। नाउ यू कैन आल्सो यूज की चैट जीपीटी एंड जितने भी ये सब एआई टूल्स हैं उनका यूज आपको आता है, वो एक अच्छी चीज़ है, आना चाहिए, बट हाँ इट शुड बी लाइक कि आप उसको जैसे आपको कोई असाइनमेंट मिल रहा है तो आप, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं क्लासेस लेती हूँ कभी, तो बीएसएमएस वाले क्या करते हैं, सब कुछ एआई वाले करते हैं, इतने एडवांस हो गए हैं, मतलब अलग ही जी रहे हैं, सब कुछ एआई वाला करते हैं, तो आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन की जितनी कैपेसिटी होती है उतना कोई भी एआई मॉडल नहीं कर सकता है। तो खुद का इनोवेटिव माइंड को यूज करो। जो भी स्मार्टली वर्क करने के लिए हम एआई को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमने कुछ लिखा है, अगर उसमें हमें लग रहा है कि कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं या बहुत लंबा हो गया है, उसको समराइज करना है, तो उस केस में हम एआई का यूज कर सकते हैं।
अगर हम कोई सीवी नहीं, अगर हम कोई लिटरेचर रीड करें तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। तो एआई का उतना ही यूज़ करो जितना कि वो सही लगे। अब क्योंकि हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएँगे एआई पे, लेकिन अगर आपको साइंटिफिक फील्ड में रहना है, वहाँ पे एआई बिल्कुल भी नहीं चलता। आपको डिक्लेरेशन में ही लिखना होगा कि यू हैव नेवर यूज़ एआई फॉर राइटिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट या ड्राफ्टिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट। नाउ उसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें, प्लीज एक्सक्यूज मी, अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने जो भी किया था इट शुड बी इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि आपने क्या क्या किया है। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा है रिसेप्शनिस्ट, टीएनटी इलेक्ट्रॉनिक्स, सांगर, सीए, एंड उसके बाद उनमें उसमें स्पेसिफिकली क्या क्या रोल था, क्रिएटेड अ वेलकमिंग एटमॉस्फेयर फॉर मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैनेज आउटलुक कैलेंडर्स एंड वट एवर स्केड्यूल्स ऑफ 4 फुल टाइम सेल्स स्टाफ, जो भी था, मतलब जो भी उनका रोल था उसके अंडर उन्होंने मेंशन करा है बुलेट्स में, तो पता चल जा रहा है कि क्या क्या रोल उन्होंने किया है। उसके अलावा एंश्योर पैकेजेस वर मेल्ड इन अ टाइमली मैनर, यानी सोचो सब कुछ मेंशन किया है, जो भी एक रिसेप्शनिस्ट के अंडर उस नीश में जो भी सब कैटेगरीज थी सब कुछ मेंशन किया है। आफ्टर दैट सेकेंड उनका जो भी एक्सपीरियंस है, चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, एक्टिविटीज, वो क्या क्या थे, मेंबर थे, जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में कभी कुछ मेंबर रहे हैं किसी भी चीज़ का, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिया था, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, व्हाटएवर, जो भी लिटरेचर क्लब, उसमें अगर आप हैं तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। मेंबर्स, सैंगर हाई स्कूल मार्चिंग बोर्ड, अगर आप कभी सीआर रहे हैं, आप कभी स्टूडेंट यूनियन के मेंबर रहे हैं, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो चीज़ नहीं है मैं वो वैसे बता देती हूँ, जैसे ये सब हो गया। जो चीज़ नहीं है वो क्या है, साइन। लास्ट में आपको जो क्लोजिंग होता है वो हमेशा क्या करना होता है, हमें क्लोजिंग में अपना सिग्नेचर करना होता है, सिग्नेचर करना होता है लास्ट में अपना। और हमेशा कोशिश कीजिए कि हैंड रिटन सिग्नेचर यूज करें एंड नॉट कि आप नाम लिख दे रहे हैं अपना। हमेशा अपना साइन कीजिए, अगर मैं लिखूंगी जैसे योर्स सिंसियरली, अगर मैं लिखूंगी उसके नीचे मैं अपना साइन करूंगी जो भी मेरा साइन है, एंड वहां पे मैं फिर अपना नाम लिखूंगी जो भी फॉन्ट मैंने यूज किया उससे। तो इतने से क्लोजिंग होना चाहिए कि आप उसे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि हाँ ये आपने ही ड्राफ्ट किया है एंड यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर मेंशन इन योर रेज्यूमे और सीवी। सो ये सारी चीजें आप पूरा ऑथेंटिकेट करते हैं साइन करके। और साइन हमेशा क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कंप्यूटराइज्ड। कोशिश करें कि आप अपना एक साइन स्कैन कर ले एंड उसको हर जगह पेस्ट करें एंड उसके नीचे अपना नाम लिखे, क्योंकि साइन से तो कोई पता नहीं कर पाता। सो नाउ मैम आई एम डन। सिग्नेचर शुड बी शॉर्ट या इन फुल नेम? आप जैसे हमेशा प्रोफेशनली करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। सो आई एम ओके डन, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट। Ma'am, if I've attended one or two conferences, international conferences during masters, so and my both the articles are published in their publication in their हाँ, book. So may I mention that in my yes, resume? yes, of course, sure, you can mention that, and that is known as conference proceeding. मैंने mention करा था, you can In, mention it. Obviously, you can mention it, and that will be a very appreciating कि आप अपने मास्टर्स में अगर आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, वो पेज नंबर, वो एब्स्ट्रैक्ट आपके पास होना भी चाहिए, अगर वो डिमांड करे तो आप उनको दे पाए। okay, ma'am. अचीवमेंट्स में आप ये सब कुछ डाल सकते हैं, जैसे अगर आपको कॉन्फ्रेंस में अगर आपने कुछ प्रेजेंट किया है, पोस्टर, पेपर, तो वो भी एक अचीवमेंट है। अगर आपको कोई पोजीशन मिला हो तो और भी अच्छी बात है। यस, कोई कुछ पूछ रहा था। Yeah, good evening, Dr. Nisha. Like, our students have a general query, like, ma'am, where to get a perfect hands-on training because the theory part are not like a complete package to do so. ओके, सो सबसे पहला तो अगर आप लोग को ट्रेनिंग करना है तो मास्टर्स के 4th सेमेस्टर को ही ऑप्शनल रखा जाता है, यानी कि आप उसको फुल टाइम प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, फुल टाइम थ्योरी भी कर सकते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि
और उसमें सब्जेक्ट ऐसा रखते हैं फोर्थ सेम में कि वो ऐसा हो कि अगर प्रोजेक्ट वाले प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं तो उनका कोई लॉस ना हो। तो 3 सेमेस्टर में ही सारे मेन सब्जेक्ट्स को निकाल दिया जाता है, मतलब आपको पढ़ा दिया जाता है। एंड फोर्थ सेम में ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जो ना भी पढ़ो तो कुछ मेजर लॉस नहीं होगा। तो यू कैन ऑप्ट फॉर रेजिडेंशियल मोड। पहली चीज तो ये हो गई कि आपके यूनिवर्सिटी में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द थिंग्स कम कि मेरे यूनिवर्सिटी में या मेरे लैब में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि मुझे कुछ एक्सपोजर मिल सके जिससे मुझे बेनिफिट हो। तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट CSIR लैब्स, एंड CSIR लैब्स के अलावा आइसर्स समर इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से रिसर्च फील्ड का सीखना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा 6 मंथ या 3 मंथ्स का ट्रेनिंग लेना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, हमेशा कोशिश कीजिए कि CSIR के लैब्स में, आइसर में, एंड उसके अलावा जैसे कि जो कुछ इंडस्ट्रीज भी कराती हैं आपको ट्रेनिंग, एंड वो सच में ही बहुत अच्छे से हैंड्स ऑन आपको समझ में आएगा कैसे। जैसे बहुत सारी चीजें बायोकॉन भी कराता है, सिंजीन भी कराता है, तो आपको उसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए भी आपको हमेशा देखना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि कब फॉर्म आ रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वैसे सर्च करने से, इवन ऑनलाइन भी आप कुछ कुछ कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो। और अभी जिस प्लेटफॉर्म में आप हैं आप उनका भी कर सकते हैं, उनका भी बहुत कुछ हमेशा होते रहता है। तो यस, दिस इज ऑल। और किसी Students, को if you have any doubt, you can ask. मैम रिज्यूम पे फोटो लगा सकते हैं या नहीं? सॉरी क्या? मैम रिज्यूम पे फोटो लगा सकते हैं या नहीं अपना? सी अभी अभी पहले की अगर आप बात पूछते तो मैं बोलती कि हाँ लगा सकते हैं, बट अभी नहीं लगाते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारा सारा कुछ ATS से ट्रैक होता है। तो ATS जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है, वो फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो आई विल रिकमेंड कि मत यूज करो, क्योंकि वो सब कुछ सॉफ्टवेयर से रन होगा तो आपका फोटो वैसे भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप कीवर्ड्स और हमेशा टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को यूज करो, बहुत ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स यूज मत करो। तो फोटो की नीड नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। किसी ने पूछा है फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट। सी फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट बहुत सारे AI टूल आपको इतने सारे मिल जाएंगे जो कि क्राफ्ट करके आपको दे देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही अपना क्राफ्ट करना चाहिए। मतलब आपने हेल्प भी ले लिया तो लास्ट जो फाइनल प्रूफ रीड होता है वो आपको खुद करना चाहिए, कि वो ऐसा भी ना लगे कि पूरा पूरा क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में डाल दिया है and आ जा रहा है। सो आप वैसा मत कीजिए। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए उनसे बिल्कुल टेम्पलेट और उसके अकॉर्डिंग खुद ही फिल इन कीजिए। आपके पास क्या है, आप अपने आप को सबसे अच्छा कौन जानता है, हम खुद जानते हैं अपने आप को। तो उसके थ्रू यूज़ कीजिए, एंड अलग-अलग जो टेम्पलेट्स हैं उनसे क्रॉस चेक कीजिए कि क्या उनसे अलाइन हो रहा है मेरा CV, या कुछ आउटडेटेड तो नहीं है, या कुछ बहुत ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं डाल दिया है। तो AI की हेल्प से आप बना सकते हैं, बट एट द एंड उसको प्रूफ रीड करके एडिट खुद कीजिए। नहीं, एजुकेशन समरी इन द फॉर्म ऑफ टेबल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं वही कह रही थी कि ATS से आपका ट्रैक होगा तो आप ऐसी चीज़ें रखिए जो कि वो सॉफ्टवेयर रीड कर पाए। अगर आपका सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर पाएगा तो आपका CV या रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो नो टेबल, नथिंग, सिंपल। आपने क्या करा है वो जैसे मैंने बताया था कि मास्टर्स, फिर इंस्टीट्यूट, फिर ईयर, बस उतने को ही वो ट्रैक कर सकता है। वो टेबल, रो, कॉलम कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। Dr. Nisha, like मैं a small insight to our students, like how you come along over through, like how what were the challenges you faced during your या times of bachelor's and master's? सी ये तो मैं हमेशा शेयर करना पसंद भी करती हूँ। मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, मैं बॉर्न तो हुई हूँ यूपी में, बट आई एम ब्रॉट अप एंड मेरा जितना भी एजुकेशन है कोलकाता आने से पहले सब कुछ रायपुर छत्तीसगढ़ से हुआ है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हमेशा से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही हूँ, तो मुझे एज सच एकेडमिक्स में कुछ नहीं करना पड़ा है। मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे होते थे, 90s प्लस होते थे, तो मुझे कुछ उसके लिए नहीं करना पड़ा। बट उतने के बाद भी जब मैंने 12th पास आउट किया, मैं वन ऑफ द नीट एस्पिरेंट थी, मुझे नीट करना था बीइंग अ बायोलॉजिस्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, UR में होने के बाद तो अब ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बचा नहीं है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो आया था वो 421 आया था, मुझे अभी भी याद है। 2014 की बात है, 2014 में मैंने अपना 12th दिया था एंड साथ ही साथ में मैंने नीट दिया था। विदाउट एनी कोचिंग मेरा 421 आया था, एंड जो कट ऑफ गया था वो 433 गया था।
तो मैं आई वाज़ वेरी अपसेट कि अब तो मेरी दुनिया खत्म हो गई, मैं तो अब एमबीबीएस नहीं कर पाऊँगी, मैं क्या करूँगी? लाइक उस टाइम पे सब यही सोचते थे। बट मेरे पापा ने मतलब मुझे कहा कि नहीं, अभी हम वो एकदम अगेंस्ट में थे, वो खुद भी एक लेक्चरर रहे हैं, तो उनका ये था कि नहीं, मैं गैप तो लेने नहीं दूँगा, सीवी में एक गैप लेना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है आगे चल के एंड वो उस चीज़ को मैं अभी भी रियलाइज़ करती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने बैचलर्स और वो भी बायोटेक मैंने ले लिया था। फिर साथ-साथ में मैं प्रिपेयर भी करती थी, बट जैसे मैंने बायोटेक लिया, तो 6 महीने बाद मतलब मेरा बीएससी का जब 6 महीना बीता, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा बायोटेक। मतलब बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट मैंने इतना कुछ उसमें पढ़ा एंड मैं एक पहले ऑटोनोमस बॉडी से थी, तो वहाँ पे उतना कुछ प्रोफेसर्स पढ़ाते नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो मैं कैसी थी, मैं बहुत ऐसे डरी सहमी सी एक लड़की थी जो कि कॉलेज में जिसको भेज दिया गया था, वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन सब हाय हल्ला कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं एकदम ऐसी थी कि डरी सहमी सी रहती थी। बट जब वो 1 साल बीता, फर्स्ट ईयर में मार्क्स भी काफ़ी अच्छा है और खुद से उस टाइम थोड़ा बहुत प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं आपको। आप फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो इम्पैक्ट देना होता है इंस्टीट्यूट को, तो वो पढ़ाते हैं। सेकंड ईयर से वो आपको बिल्कुल छोड़ देते हैं कि आप खुद करो। तो सेकंड ईयर से मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, मैं कैसे ही करूँगी? उतना कुछ तो मैं देख रही हूँ लोगों को सब कुछ कर लेते हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता। उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे सब कुछ खुद ही करना है। तो उस टाइम से मैं खुद के नोट्स बनाती थी और उस टाइम से मैंने एक आदत डेवलप की कि अगर आप बैचलर्स में रहते हैं तो डोंट जस्ट रीड इंडियन ऑथर का बुक। इंडियन ऑथर का बुक अगर आप रीड करते हैं और आप सोचते हैं कि एमएससी में जाके मैं फॉरेन ऑथर का बुक पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि आप इंडियन ऑथर्स की बुक, मैं ऐसा नहीं कहती कि बहुत खराब होती है, लेकिन हाँ, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, कोई हिस्ट्री नहीं होता है, तो आपको उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना मिले, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वहीं से ही आदत डाली मैंने कि मैं क्या करूँ, मैं फॉरेन ऑथर्स की बुक पढूँ। ऐसे करते-करे मेरा बैचलर्स हुआ। बैचलर्स में मैं फिर से गोल्ड मेडलिस्ट बनी, फिर से क्या फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडलिस्ट बनी थी। बहुत अच्छा लगा कि हाँ, चलो ठीक है। जेएनयू का एग्ज़ाम दिया, जेएनयू का एग्ज़ाम क्रैक किया, जो उस टाइम पे जेएनयू सीईईबी होता था, कंबाइंड बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम करके, जो कि अब गेट बी हो गया है। तो वो निकल गया। फिर कॉलेज लिस्ट फिल-विल करना था, रैंक भी अच्छी आई थी, तो जेएनयू अलॉट हुआ। बट उस टाइम पे जेएनयू अलॉट होने के बाद भी मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकती, आई एम नॉट सच पर्सन कि जो इतने वायलेंट माहौल में या इतने वायलेंट सराउंडिंग में रह पाए। तो मैंने एकदम से गिव अप कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं कहीं से कर लूँगी। तो मैंने ऑटोनोमस बॉडी ऑटोनोमस कॉलेज से बैचलर्स किया, बट उस टाइम पे मुझे था कि मुझे जेएनयू नहीं जाना है। तो मेरे घर पे भी काफ़ी उसके लिए क्लैशेज़ हुए कि सब कुछ मिल गया, इतना हो गया, तब भी नहीं जा रही है। बट उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने आप को अच्छे से जानती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे था कि अगर मैं वहाँ गई, तो मैं शायद सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी बिना घर पे, और एकदम से उस टाइम बैचलर्स तक भी हम थोड़े छोटे ही रहते हैं। मतलब मैं तो छोटी ही थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं वहीं यूनिवर्सिटी में जॉइन किया मैंने। मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट में थी, मैंने डायरेक्टली फिर यूनिवर्सिटी में एनरोल हुआ, वहाँ का एंट्रेंस निकाला। तो अब अगर जेएनयू हम क्वालीफाई करते हैं, तो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस तो बहुत ही मतलब ईज़ी होता है। तो वो उसमें हुआ मेरा। उसमें मैंने एमएससी जॉइन किया। तो जो मेरा यूनिवर्सिटी था, आई विल टेल यू कि मैं जो कुछ भी आज हूँ, मैं सिर्फ़ उस यूनिवर्सिटी के ही बदौलत हूँ। मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ अपनी यूनिवर्सिटी, मैंने रविशंकर यूनिवर्सिटी से किया है रायपुर से, क्योंकि वहाँ हमारा जो सेमेस्टर था 4 सेमेस्टर, और वहाँ जो प्रोफ़ेसर्स थे स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी में, उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया है, जिस वे पे पढ़ाया है, और जो मेरा जो निशा थी डरी सहमी सी बैचलर्स की, वो सीधे निकली है, मतलब बहुत सब कुछ करके कि मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कभी डरूँगी नहीं, मैं सब कुछ करूँगी। एंड बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई थी कि मुझे एकेडेमिया में ही रहना है, मुझे कोई नीट, कोई कुछ नहीं करना है, मुझे बायोटेक्नोलॉजी में ही रहना है। जबकि बायोटेक उस टाइम बहुत ही नया सब्जेक्ट था। इवन जो हमने जिन प्रोफ़ेसर्स से बायोटेक पढ़ा है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, हमारे प्रोफ़ेसर्स कोर बॉटनी या कोर ज़ूलॉजी वाले हुआ करते थे, बायो साइंसेज़ वाले। क्योंकि उस टाइम पे बायोटेक जैसा एडवांस सब्जेक्ट था ही नहीं। क्योंकि हमारे प्रोफ़ेसर जो रहेंगे वो 1990s के पीएचडी थे, तो उस टाइम पे तो बायोटेक वगैरह कुछ था नहीं, तो हमने उनसे पढ़ा है। तो लेकिन मैं जितने भी अपने मास्टर्स में रही हूँ, हमेशा टाइमली मैंने काम किया सब कुछ, एक्टिव रही हूँ, सुबह 9:30 कॉलेज जाना, शाम के 6 ओ क्लॉक को वापस आना, उसके बाद में असाइनमेंट करना, सब कुछ करना। फिर वहाँ पे भी मैं अगेन गोल्ड मेडलिस्ट रही। फिर उसके बाद में मुझे था कि अब मुझे ब्रेक नहीं लेना है, मुझे पीएचडी जॉइन करना है। 2019 में मुझे याद है कि कोविड बैच में मैंने पीएचडी जॉइन किया था। उस टाइम पे मेरे मन में काफ़ी कुछ था।
कि मुझे यहाँ से करना है, वहाँ से करना है। मैंने कई जगह पे अप्लाई भी किया, इंस्पायर मुझे मिला, इंस्पायर फेलोशिप, क्योंकि वो फर्स्ट रैंक होल्डर्स को मिलता है। तो उस टाइम पे भी ये था कि ठीक है, मुझे कहीं पे भी पीएचडी तो मिल जा रहा है, बट अगेन मुझे आया कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर नहीं होना चाहती, बिकॉज़ आई वांट टू लुक आफ्टर देम। वो ओल्ड हो रहे हैं, अगर मैं उन्हें छोड़ के गई तो आई एम अ काइंड ऑफ अ वेरी इमोशनल पर्सन, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, बट एट द सेम टाइम मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहती थी अपने एजुकेशन एंड बाकी चीज़ों पे। तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया कि जाओ, जाओ, बट मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ रह के भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने पीएचडी स्टार्ट किया, एंड पीएचडी करते-करते तक लगभग मैंने 19 में मैं एनरोल हुई। आई एम द यंगेस्ट पीएचडी ऑफ माय यूनिवर्सिटी विद 17 रिसर्च पब्लिकेशंस। और वो भी ऐसा नहीं, कोई भी मेरे नॉन यूजीसी नहीं है। सारे ही कुछ एससीआई हैं, अगर आप एससीआई समझते होंगे तो, एल्सेवियर समझते होंगे तो, स्प्रिंजर समझते होंगे तो वो सारे कुछ में मैंने काम किया, सब कुछ किया। फिर बहुत सारे कॉम्पिटिशन हुए। एक बहुत छोटा-सा इंसिडेंट है, मैं बताना चाहती हूँ उसको कि हम लोगों के यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हर साल होता है, हर साल नहीं भी तो हर 2 साल पे तो होता है छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ से जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन है। अलग-अलग सीजी के स्टेट से रिसर्चर्स आते हैं और फाइट करते हैं अलग-अलग डोमेन में, ठीक है? तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना था। अब वो था 3rd टू 4th मार्च को 2023 में, अभी भी मुझे याद है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी हम भूल नहीं सकते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरा कुछ भी प्रिपेयर नहीं था। मैंने फॉर्म वगैरह सब कुछ भर दिया था। हमको फॉर्म के साथ ही पेपर भी डालना होता है जो हम प्रेज़ेंट करने वाले हैं वहाँ पे। लेकिन उसके जस्ट 1 दिन पहले मेरे ही फैमिली मेंबर में, मतलब मेरे क्लोज़ फैमिली में किसी एक जन की डेथ हो गई। अब मैं एक इमोशनल पर्सन, मतलब मैं जिस पर्सन से मिली हूँ, ऑल ऑफ अ सडन उनकी डेथ हो जाती है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा हिट की। तो मैं एकदम ऐसे हो गई कि नहीं, अब तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरे लिए ऐसा था कि बहुत ही एक चैलेंज था कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ और मैंने इतना अच्छे से पेपर बना के उस फॉर्म को भरने के लिए ही हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि फुल लेंथ पेपर हमें सबमिट करना रहता है। मैंने वो सब करा। फिर उसके बाद में मैं काफ़ी ऐसे हुई कि नहीं, क्या ही करे, कैसे, अब मैं नहीं कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा रोना-धोना मैंने किया, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर उस पर्सन के बारे में भी सोचती हूँ, मतलब वो मेरी बहुत ही क्लोज़ वन थी। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि नहीं, अगर वो रहती तो उनको कितना अच्छा लगता अगर मैं उनको अपना अवार्ड एंड सर्टिफिकेट ले जाके दिखाती। तो क्या वो, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे, तो वो अगर रहती तो वो ये तो नहीं सोचती ना कि हाँ, तुम पार्टिसिपेट मत करो। तो उस टाइम पे जस्ट 3rd और 4th को मेरा कॉम्पिटिशन था। 2nd को मैं उठी, 2nd को मैंने अपना प्रेज़ेंटेशन बनाया पूरे रात भर जाग के। सुबह नेक्स्ट डे 9 बजे मैं गई अटेंड करने। मेरा शायद 1-2 बजे के स्लॉट में कुछ था प्रेज़ेंटेशन, तो मैंने प्रेज़ेंट किया, एंड गेस व्हाट? वही हुआ जो मूवीज़ में होता है, मुझे ही मिला वो अवार्ड। मतलब 18 छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस की मैं लाइफ साइंस डोमेन में वन ऑफ द लाइफ साइंस कैंडिडेट की मैं यंग साइंटिस्ट बनी। तो उस टाइम पे भी मैंने सीखा कि लाइफ में कभी भी कितना भी डाउनफॉल आए, बट हम लोग अगर वहाँ पे बैठ गए ना, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और मैंने उस टाइम पे ये भी सोचा, मैं अपने मम्मी-पापा को कुछ भी चीज़ें नहीं बताती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर, मतलब माँ-बाप के लिए बच्चों की तकलीफ सुनना सबसे बड़ा दुःख होता है। अगर मैं यहाँ पे कोलकाता में अकेले रह रही हूँ, सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, तो मैं उन्हें फिर भी नहीं बोलती। मैं उन्हें हँस के बोलती हूँ कि सब ठीक चल रहा है, आई एम डूइंग वेल, सब कुछ सही जा रहा है। क्योंकि अगर हम अपनी तकलीफ उन्हें बताते हैं, तो हमसे ज़्यादा दुःख उन्हें होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रमोट करूँ कि मत बताओ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है अभी इस एज में आने के बाद में, बीइंग पोस्ट डॉक, मुझे इतना एक्सपीरियंस तो हो गया कि एट द एंड आप ही हो अपने आप के लिए। अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो मैं जानती हूँ कि मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे खुद से ही चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में पीएचडी हुआ, बहुत ही कम एज में पीएचडी हो गया, लोग अभी एनरोल होते हैं, मेरा पीएचडी हो गया। उसके बाद मुझे था कि अब मुझे, हाँ, मैंने सारे एग्ज़ाम्स भी क्वालीफाई करे और फेलोशिप के साथ में पीएचडी भी किया। उसके बाद में फिर मुझे था कि अब भी मुझे नहीं रुकना है, मुझे एकेडेमिया में जाना है, बिकॉज़ अगर मुझे अल्टीमेटली किसी परमानेंट पोज़ीशन के लिए जाना है, तो मुझे 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो पोस्ट पीएचडी के बाद चाहिए। तो मैं जब मुझे अवार्ड हुआ ये डिग्री, उसके कुछ दिन बाद ये फॉर्म निकला था आईसर का, कोलकाता का। तो उसमें भी आई वाज़ लाइक कि भरूँ कि नहीं भरूँ? बहुत चीज़ें तो इन्होंने माँगा है, क्योंकि जितना बड़ा इंस्टीट्यूट, जितना बड़ा पोस्ट, उतना चीज़ें वो लोग माँगते हैं। कवर लेटर, रिसर्च प्रपोज़ल, सीवी, ये वो सब बहुत कुछ माँगा था उन्होंने। तो मैंने सोचा कि नहीं, नहीं भरते, छोड़ो जाने दो। बट मुझे लगा कि नहीं, अभी तक मैं इंडिपेंडेंट थी, मुझे फेलोशिप मिल रहा था।
मैं नहीं चाहती कि मेरा वो इंडिपेंडेंस चला जाए। बीइंग अ पीएचडी मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए, हाँ, हमारे पेरेंट्स बिल्कुल हमारे लिए करेंगे, बट क्या मैं हर एक छोटी नीड के लिए मैं बोलूँगी पापा मुझे पैसे चाहिए, मम्मी मुझे पैसे चाहिए? नहीं। तो वो अपने अंदर जगाओ कि मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनूँ, ताकि मैं अपनी नीड्स खुद से ही पूरा कर, किसी से कितना ही माँगोगे आप, कुछ भी चीज़ के लिए। एंड अब तक पीएचडी तक, मतलब जितने भी हम बड़े रहते हैं, हमारे मम्मी-पापा ने हमें बड़ा किया, सब कुछ अपब्रिंगिंग किया, सब कुछ किया। तो अब हमारी नीड है ना कि उनकी ओल्ड एज में हम उन्हें रेस्ट दें। तो वो चीज़ मुझे था कि नहीं, मुझे डिसकंटिन्यू नहीं करना है, मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम तो चाहिए। मैंने वो फॉर्म को भरा एंड इतना हेक्टिक लेवल ऑफ इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर हो भी गया लकीली सिलेक्शन, फॉर्च्यूनेट इनफ थी मैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया और तब से मैं यहाँ पर हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी है, हार्ड वर्क, कोई भी उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेबोरियस मत बनो बिना दिमाग लगाए गधों की तरह। तो थोड़ा-सा दिमाग को यूज़ करो, ब्रेन को यूज़ करो। हाँ, ऑनेस्ट रहो, कभी भी किसी का गलत मत करो, क्योंकि कर्मा जो तुम लोग को भी पता होगा कि वापस आता है। तो इसलिए हमेशा अच्छा करो एंड बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहो। एंड अभी रिसर्च के भी कुछ बहुत सारे डाउनफॉल्स हैं, रिसर्च कम्युनिटी वैसे ही आप लोग को भी पता होगा, आप लोग कई लोग जाना भी चाहते होंगे, तो मैं ये भी बोलूँगी कि रिसर्च में अगर जाना है, तो उसका डाउनफॉल भी जानो, मतलब बिहाइंड द स्टेज भी जानो। मैं खुद भी जैसे अभी मैं गई थी वर्कशॉप में आईआईटी पटना, तो वहाँ पे भी मैंने यही डिस्कस करा कि कोई खुल के नहीं बताता, बट मैं नहीं डरती किसी से, क्योंकि आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि ना मैंने अपने पीएचडी में कुछ इस टाइप की चीज़ें देखी, ना अभी पोस्टडॉक में आई विल नॉट रिवील पूरी तरह से। हाँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं है। यू कैन सी कि मैं अभी भी अपने लैब टी-शर्ट में हूँ, क्योंकि मैं 9 बजे ही घर आई हूँ। 9 सवा 9 तक मुझे हो गए घर आते एंड कल होली है, कल भी मुझे लैब जाना है। क्यों जाना है? आई डोंट नो, मेरा कुछ काम नहीं है, स्टिल आई हैव टू गो लैब। तो ये सारी चीज़ें जो टॉक्सिसिटी है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको स्टैंड लेना है। बीइंग अ पोस्टडॉक मैं बोल देती हूँ कि नहीं, मेरा एक लिमिट है, वर्क लाइफ बैलेंस मुझे चाहिए। अगर मुझे नेक्स्ट डे भी उतने एनर्जी, उतने एंथुसियाज्म के साथ आना है, उतने मोटिवेटेड होके आना है, तो मुझे रेस्ट चाहिए। मैं घर आऊँगी, मैं रेस्ट करूँगी, मैं जाऊँगी। तो बोलना भी सीखो गलत चीज़ों में, ऐसा डम मत बनो कि नहीं बोल सकते। जैसे अगर पहली वाली निशा से बात करते हैं, बैचलर्स वाली से, तो वो कुछ नहीं बोलती थी। बट आज के डेट में मैं बहुत पोलाइटली अपनी बात रखती हूँ, तो पोलाइट रहो, किसी के साथ गलत मत करो, हार्ड वर्क करो और माइंड में ये सोचो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। हमेशा सेल्फ डिपेंड बनना है और इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है? ये दोनों चीज़ों को, कि हमेशा घर से पैसे नहीं लेने हैं खुद, और कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आज नहीं मिला है, कल को कुछ ज़रूर मिलेगा, लगे रहो उसमें। तो अगर आप ऐसे नहीं हो कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, तो आज के डेट में मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। मेरी नीस है, मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि मार्क्स के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आपके में 99% भी है, बट आपके पास स्मार्टनेस नहीं है, स्किल्स नहीं है, नोबडी विल हायर यू। बट अगर 60% वाले बच्चे के पास अगर सब कुछ है, स्किल्स हैं, तो वो हायर हो जाएगा। तो अपने अंदर डिफरेंशिएटर लाओ। अगर 10 लोग उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ही क्यों सिलेक्ट किया जाए? वो डिफरेंशिएटर अगर आपके सीवी में है, तो कोई भी जॉब देने से मना नहीं करेगा। तो बस। Thank you so much, Dr. Nisha, for your insightful words. As participants, I would like to turn on their cameras so that we can have a group photo once. Guys, turn on कर लीजिए। सब सो गए हैं क्या? सो गए, मेरी कहानी सुनते। Well, they also want a session mode to get transformed from their amateur level, I guess. Yeah, okay. हाय मैम। करो, कैमरा ऑन करो, कुछ नहीं होता। हमेशा अपने आप को प्रेजेंट, अब इंटरव्यू में अगर कैमरा ऑफ करके थोड़ी इंटरव्यू दोगे। अभी तो हम सब इंटरैक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही है, सब खा पी के बैठे हैं। मतलब मैं तो अभी खाई नहीं, मुझे अभी बनाना है। भूख तो लगी होगी मैम। हाँ, मतलब भूख तो लगी है मुझे, ऑफ कोर्स। बट मैं मेस वेस का प्रेफर नहीं करती, मुझे ऐसे कोलकाता का फूड, बंगाली फूड उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं खुद ही कुक करती हूँ। खुद से बनाने का मजा ही कुछ अलग है, मजा भी आता है खाने में। हाँ, Guys मतलब from Kolkata, don't get offended now.
हाँ यस, मतलब मैं ऐसे नॉनवेज नहीं प्रेफर करती, मतलब मैं फिश प्रेफर करती हूँ बट ओनली वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा से खुद, मतलब कुकिंग मेरा हॉबी है। मुझे अगर मेरा ब्लॉग चैनल देखना हो तो उसमें पता चलेगा मैं कितना कुकिंग करती हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मतलब मैं प्रो हूँ कुकिंग में। तो मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल लेती हूँ अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, जैसे कोई पेंटिंग करता है, कोई म्यूज़िक सुनता है, वैसे मैं कुकिंग करती Okay, thank you so much, guys. Guys, अगर एक हाउ टू ड्राफ्ट अ रिव्यू आर्टिकल का एक सेशन चाहिए मैम से तो क्विकली गिव्स अ थम्स अप यार सब लोग। Oh, lots of thumbs up. एक से। हूँ। Okay. Okay, we Sure. will discuss with Dr. हुँ, Nisha once and we will let you know. Okay, she's having a very hectic schedule now. Okay, thank you so much, Dr. Nisha, for coming to our channel थैंक यू सो and मच। giving a valuable insights. Have a good day. थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Have a good day, ma'am. Thank ओके, you, ma'am. गुड नाइट। Awesome lecture, तो ma'am. मैं Thank you. समझ आया है ना? बनाना वैसा रेज़्यूमे। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yeah. Yes, ma'am. आपके Yes, वाले sir. थैंक यू मैम। Very useful, ma'am. थैंक यू एंड डू फॉलो माय यूट्यूब चैनल। Share, Sure, ma'am. share